everyone, Neha here. So in the last video we have discussed about exercise 2.1 question number 1 and question number 2. So let's start question number 3 now. In a magic square, the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? Now they are asking, we have also done in chapter first. What is magic square? I told you in a magic square, the sum of rows. What is row here? What is rows? First row, second row, third row, and what is column? These are the columns. So sum of the rows and sum of the columns and sum of the diagonals. These are the diagonals. Comes equal if the sum of the rows, sum of the columns and sum of the diagonals are equal. It means given square is a magic square. Yes, so let's check now. First row. What is the first row? 4 upon 11. 4 upon 11 row. This is a row. First row. This is a row. 4 upon 11 plus 9 upon 11 plus 2 upon 11. Sum will be 15 upon 11. So because already we have denominator equal, हमारे पास denominator equal है तो no need to take the LCM, क्योंकि LCM तो तभी लेते हैं जब denominator हमें equal करना हो, तो denominator तो equal है हमारे यहाँ पे हो, ठीक है. So directly we have to add the numerator. 4 plus 9 plus 2 will be 15. तो 15 upon 11. Same. Second row. Second row is this 3 upon 11 plus 5 upon 11 plus 7 upon 11. It will be again 15 upon 11. Then again third row 8 upon 11 plus 1 upon 11 plus 6 upon 11. It will be again 15 upon 11. 8 plus 1 plus 6, 15. Now come on the rows now. Those we have completed. Come on the column now. These are this is column first, column second, column third. So column, add column 1. 4 plus 3 plus 8. It will be 11 upon 15. Now second one. 9 plus 5 plus 1. Again 15 upon 11. Third row. 2, third column. 2 plus 7 plus 6. Again it will be 15 upon 11. Now we have to check the diagonals also. The sum of the rows and the sum of the column we get 15 upon 11. Now check the diagonals also. We have two diagonals. Diagonal 1, diagonal 2. Diagonal 1, this is a diagonal and this is another diagonal. Okay, so 4 plus 5 plus 6. Again 15. 8 plus 5 plus 2. Again it will be 15. So what we have noticed? We have noticed the sum of the rows, sum of the column and the sum of the diagonals we get 15 upon 11. Hence it's a magic square. I hope you have understood. Come on the next now. Question number 4. A rectangular sheet of paper. There is one rectangular sheet of paper. एक sheet of paper की जो rectangular shape में है is 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ है शीट ऑफ पेपर की 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो लेंथ दे रखी है, एंड 2/3 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी चौड़ाई दे रखी, वाइड दे रखी है. दे आर आस्किंग फाइंड इट्स पेरीमीटर. वो पूछ रहे हैं उसका पेरीमीटर क्या है. सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, लेंथ 12 1/2 and the breadth is 2/3 centimeter. We have to find perimeter. What is the formula to find the perimeter? 2 into L plus width or breadth. 2 into L plus breadth. Yes, then now you have to put a value. You have to put a value. Put a value. What is length here? 2 this. Length is 12 1/2 plus 10. Breadth is 10 2/3. So फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट. पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए. अंदर ब्रैकेट के अंदर आप देखिए 12 1/2 है, तो पहले आप इसे मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 12 2 24, 24 plus 1 25 upon 2. 10 into 3 30, 30 plus 2 32, 32 upon 3.
अंडरस्टूड. नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम बिकॉज यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप दो फ्रैक्शंस को, दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो पहले आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना. फर्स्ट यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल. टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल यू हैव लर्नड इन क्वेश्चन 1 that we have to take LCM or we can multiply directly numerator and denominator with the same number. This is your choice. So here I have taken LCM. So 2 and 3 LCM will be 6. 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम. 3 25 जा 75 will come. Then 3 की टेबल में 6 it will come 2 time. 2 32 जा will be 64. It means 75 plus 64 will be 139. अब 139 upon 6 और into 2. अगर यहाँ आपका बाहर कोई साइन नहीं होता है इस ब्रैकेट के बाद, इट मीन्स आपका मल्टीप्लाई साइन होता है, तो आप इसे आप कैंसिल कर सकते हैं. येस, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. करेक्ट. सो आपका क्या है 139 अपॉन 3. ओके, अब आपका 139 अपॉन 3 आया. अब ये आपका इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करके डिवाइड करते, तो हमने डिवाइड किया तो वी विल गेट 46 1/3. क्वेश्चन रिमेंडर अपॉन डिवाइजर यू कैन डू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 46 1/3 सेंटीमीटर. कम ऑन फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ, हमें पेरीमीटर निकालना है ऑफ दिस फिगर ट्राइंगल ABE. या हमें ट्राइंगल ABE दे रखा है एंड दे हैव गिवन रेक्टेंगल. सेकेंड पार्ट में रेक्टेंगल गिवन है BCED. यस, BCDE, जिसकी हमें इन दिस फिगर. सो हमें पैरामीटर निकालना है एक ट्राइंगल का, ट्राइंगल की साइड से रखे हैं, रेक्टेंगल का जिसकी आपको लेंथ दे रखी है. हुज पेरीमीटर इज ग्रेट. आप ये पूछने पहले आप पेरीमीटर निकालो, फिर ये बताइए कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ग्रेटर. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर टू फाइंड आउट दिस. सो पेरीमीटर, पहले हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, हम ट्राइंगल का निकाल रहे हैं पेरीमीटर इस ट्राइंगल का. तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम, यानी कि AB BE एंड AE सम हो गया. सम का मतलब प्लस करना है. 5/2, ये जो आपका साइन है वो किसका साइन होता है? डिवाइड का, बाय का. यस, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. चलिए, सो इट विल बी 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5. तो आप इसे यहाँ क्या करेंगे? अगेन आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 2 4 और 5 का क्या होगा? 20. तो 2 के टेबल में 20 कितनी बार आ रहा है? 10. 10 5 ज़ा 50. 4 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 11 था 55. 5 की टेबल में 20 4 टाइम, 4 18 था, it will be 72. Understood? Now you plus all the numerator. 50 plus 55 plus 72 will be 177. It means 177 upon 20. Now this is again it cannot be changed into simplest. अगर पहले आप इसे simplest form में change करेंगे. अगर ये simplest form में change नहीं होगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, किसी की टेबल में नहीं कट रहा है, so what you will do? Then again you will then divide it. You will change into mix. And to change into mix you have to divide. आपको divide करना है इसे. तो divide करिए. जब आप divide करेंगे 177 को 20 से, तो आपका क्या आएगा? 817/20. You can divide and then you can see the result. Second part now. फर्स्ट पार्ट तो आ गया हमारा. अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. आपको रेक्टेंगल का भी निकालना है. आपका ये वाला रेक्टेंगल 20, तो इसके लिए आपका रेक्टेंगल में क्या करेंगे आप? BC प्लस CD प्लस DE प्लस BC. यू हैव टू प्लस ऑल द नंबर्स. यस, ये आप ठीक है. और आपका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 × L + B. करेक्ट. आप डायरेक्टली फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं. इट विल बी ईजी. 2 आपका ऐसे ही आ गया. L कितना है आपका? यहाँ पे लेंथ क्या होगी आपकी? ये आपकी ब्रेथ लेंथ क्या होगी बताइए? क्या होगी लेंथ? अगर ये 2/3 दे रखा है, ये अगर आपका 2 3/4 है ये वाली साइड, तो आप रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये वाली साइड भी क्या होगी आपकी? 2 3/4. अगर आपकी ये साइड ब्रेथ आपकी ये 7/6 दे रखी है, तो ये वाली भी BC कितनी होगी? 7/6. तो आप क्या लिख सकते हैं? 11. आपको यहाँ देखिए क्या होगा? 2 4 ज़ा 8, 8 + 3
9, 10, 11, 11/4, ये आपकी लाइन 11/4 होगी। ब्रेथ आपकी 7/6 आ गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आप ये देखिए अगेन 11/4 प्लस 7/6, आपको इनका आप क्या करेंगे, 11/4 प्लस 7/6 एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 11 से कितना होगा 33, तो ये आपका क्या आ गया 33, ठीक है। अब ऐसे 6 की टेबल में कितनी टाइम्स आएगा, 2 7 14, तो आपका यहाँ आ गया 14/14, करेक्ट, 14/12। इट मीन्स 33 आपका क्या आया 33/12, ठीक है। ये आपका 12 प्लस 14, आप जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो 33 प्लस 14 कितना होता है 47/12, 47/12 हुआ। अब आप देखिए इसे 2 इंटू 47/12, 2 1 2, 2 6 12, तो 47/6, और 47/6 को आप कैसे लिख सकते हैं 7/5/6, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन था, यू हैव टू चेंज इनटू mix. I hope you have understood. So in this video we have discussed about question number 3, 4 and 5. Thank you everyone, and the next video we will continue question number 6.